welcome back. In the previous video, we studied about the skeleton and its functions. In this video, we are going to different parts of the skeleton that are skull, backbone, joints, rib cage, limbs, means rib cage, limbs. After that, joints and girdles at the last. Joints are many types that are ball and socket joints, hinge joints, pivotal joints, gliding joints, fixed joints, and at the last girdles. These are the types: girdles, joints, after that limbs, rib cage, backbone and skull. These are different parts of the skeleton that we are going to study. Then first part here is skeleton. The skull, the first part is skull, and here is written that the skull has 22 bones. A skull, that is the uppermost part of the human skeleton, consists of 22 bones. The skull has 22 bones. The upper part of the skull is made up of 8 flat bones joined together. जो upper part है वो 8 flat bones से मिलकर के बना रहता है. The face and jaws contain 14 bones. और जो face है और जो जबड़े हैं वो 14 bones को कंसिस्ट करते हैं. इस तरह से 14 plus 8 equal to 22 means टोटल जो स्कल है वो 22 बोन से मिलकर के बनता है. All the bones in the skull are fixed except the lower jaw. जो स्कल में बोन्स हैं वो फिक्स होते हैं. जो नीचे का स्कल का जो लोअर पार्ट होता है जा का, जबड़े का, वही एक मात्र जो होता है वो मूव कर सकता है. Then lower jaw, that because of which we can speak, we can eat something, we can chew something, कुछ हम खा सकते हैं, चबा सकते हैं या बोलते हैं. तो because the lower part, lower jaw here is depicted in the picture, that is free to move, but all other 21 bones are fixed in the skull, and skull, that is the uppermost part of the human skull. The skull is the bony structure that surrounds the and protects the brain from an injury. और इस स्कल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें हमारा ब्रेन रहता है और उस ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है स्कल, जिसे हिंदी में हम खोपड़ी कहते हैं. द लोअर जा कैन बी मूव्ड, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो लोअर जा है, नीचे का जबड़ा है, कैन बी मूव्ड, वो हिलाया जा सकता है, विच अलाउज द ह्यूमन टू च्यू देयर फूड, सिंग एंड टॉक. और जिसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं, आदमी होता है, वो किसी भी अपने भोजन को च्यू कर सकता है, चबा सकता है, गाना गा सकता है और टॉक, बातचीत कर सकता है. बैकबोन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटन, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम. साइंटिफिक भाषा में उसे कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम. इट इज अ लॉन्ग हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, एक लंबा बोनी स्ट्रक्चर, हड्डियों से मिलकर के बना हुआ एक स्ट्रक्चर है. इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्राe, that is plural of vertebra, which are joined to each other. छोटे छोटे vertebras means small bones का 33 एक ग्रुप होता है जो कि लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है. उसको हम बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, which are joined to each other, जो एक दूसरे जुड़े रहते हैं. और उनमें 33 स्मॉल बोन्स, 33 छोटी छोटी हड्डियां होती है. द बैकबोन इज स्लाइटली एस शेप्ड, और इसका जो शेप होता है वो स्लाइटली मीन्स पूरी तरह से एस की तरह तो नहीं, लेकिन हल्का स्लाइटली एस शेप्ड होता है. इट इज द मेन एक्सिस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का मेन एक्सिस होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन, और इसे हम स्पाइन भी कहते हैं. The spine or backbone protects the spinal cord of humans. Humans की backbone में spinal cords होते हैं जो कि रीढ़ की हड्डियों से जो arteries और दूसरे veins ये सब होके जाते हैं, that are called spinal cords, उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा स्पाइन या बैकबोन.
The backbone gives elasticity to our body. हमारी बॉडी को elasticity देता है, लचीलापन देता है. Also, presence of joints in the backbone allows slight movement of the backbone, जो कि 33 small bones से मिल करके उनको ज्वाइन करके बना रहता है. इस वजह से इसमें स्लाइट मूवमेंट्स होते हैं, due to which the human beings are able to move backward, forward and sideways, और जिसकी वजह से वो ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो बैकवर्ड और साइडवेज में मूव कर सकते हैं. After that, the next part of the human skeleton are rib cage. Cage means होता है पिंजड़ा और rib means होता है पसली. That are rib cage, जिसे हम हिंदी में पिंजर भी कहते हैं. अगर हिंदी की बात करें, cage means होता है पिंजड़ा. Then rib cage हड्डियों का एक पिंजड़ा जिसके अंदर हमारे lungs, hearts और liver सुरक्षित रहते हैं. Then here is written the bones located in the chest. हमारे सीने में जो बोन्स होते हैं वो एक केज, एक पिंजड़े का निर्माण करते हैं, और वो बोन्स जो होते हैं वो रिब्स कही जाती हैं, आर कॉल्ड रिब्स. द बोन्स लोकेटेड इन द चेस्ट आर कॉल्ड रिब्स. चेस्ट में जो मौजूद होते हैं बोन्स उनको रिब्स कहते हैं. द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स. 12 पेयर्स मींस टोटल 24 बोन्स का एक कंसिस्टमेंट होता है, उनका एक कलेक्शन होता है, और वो मिलकर के रिब केज बनाते हैं. ऑल द रिब bones except the last two pairs are attached to the backbone in the back. उनके जो 24 bones में लास्ट 2 पेयर्स को छोड़ करके बाकी सभी हड्डियां बैकबोन से अटैच होती हैं पीछे, एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, और आगे ब्रेस्ट बोन से अटैच होती हैं. और इस तरह से एक केज की तरह एक पूरा उसके चारों तरफ एक पिंजड़े के आकार का स्पेस बनाती है, और उस स्पेस में हमारा लंग्स और दूसरे डेलिकेट ऑर्गन्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं. द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स दैट आर नॉट joined to the breastbone are called floating ribs. जो लास्ट के 2 पेयर्स जो कि फ्रंट में ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं रहते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. मींस 4 फ्लोटिंग रिब्स जो है हमारे रिब केज में होती हैं. द रिब केज इज अ प्रोटेक्टिव बोनी केज, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक पिंजड़े के आकार का शेप बनाते हैं. Then that is written the rib cage is a protective bony cage. जो रिब केज होता है वो एक प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्टिव बोनी केज है, हड्डियों से मिलकर बना हुआ एक पिंजड़ा है. दैट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि हमारे कोमल इंटरनल ऑर्गन्स जैसे सच एज हार्ट, लंग्स एंड लीवर, इनको प्रोटेक्ट करता है. Then in the next video we will study other parts of the human skeleton, that are limbs, and after that joints and other parts also.